जय सद्गुरुदेव, जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 63। क्रोधाद् भवति समोहः समोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और जहाँ क्रोध आया वहाँ सम्मोह या अविचार एवं मूढ़ भाव भी रखा ही रहता है। अविवेक के उत्पन्न होने से स्मृति उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार प्रचंड वायु के झोंके से दीपक की ज्योति बुझ जाती है, अथवा स्मृति नाश से प्राणी की वैसी ही दशा होती है जैसी सूर्य अस्त होने पर रात्रि के कारण सूर्य तेज की होती है। फिर जब अज्ञान के अंधकार से सब कुछ व्याप्त हो जाता है तब बुद्धि अंदर ही अंदर घबरा जाती है। हे अर्जुन, जिस प्रकार जन्मांध को इधर उधर भटकना पड़ता है उसी प्रकार बुद्धि भी भ्रमित होकर भटकने लगती है। विवेक शक्ति का भी पूरी तरह से नाश हो जाता है। चैतन्य से निकल जाने पर जो दशा शरीर की होती है ठीक वही दशा बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य की हो जाती है। उसका पतन हो जाता है और मरने के बाद नाना प्रकार की नीच योनियों में या नरक में पड़ता है। From anger arises delusion. From delusion, loss of memory. From loss of memory, the destruction of discriminating power, conscience between right and wrong. He will speak and do anything he likes. He will be swept away by the impulse of passion and emotion and will act irrationally. Once this conscience becomes dull, the man is changed into a two-legged animal with no sense of proportion or with no ears to hear any subtler call in him than the hungers of the flesh. Om. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశపాల్జీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 2 సాంఖ్యయోగము శ్లోకము 63। క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ శృతిభ్రంశ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి। ఎక్కడైతే క్రోధం వచ్చిందో అక్కడ సమ్మోహము లేదా అనాలోచన మరియు మూఢభావం కూడా నెలకొంటుంది। ప్రచండ వాయు యొక్క బలమైన విసురిచే దీపం ఎలా ఆరిపోతుందో అదే ప్రకారంగా అవివేకం జనించుడిచే స్మృతి కూడా నశిస్తుంది। స్మృతి నశించుడిచే ప్రాణులకు ఎటువంటి దశ కలుగుతుందనగా సూర్యాస్తమం అయ్యాక రాత్రి కారణంగా అంతా అంధకారం అవుతుంది। అదేవిధంగా అజ్ఞానాంధకారం వ్యాపిస్తుంది। అప్పుడు బుద్ధి లోపలే కలత చెందుతుంది। ఓ అర్జున, ఏ విధంగా జన్మాంధుడు దారి తెలియక అటు ఇటు తచ్చాడుతూ ఉంటాడో అదేవిధంగా బుద్ధి కూడా భ్రమతో అటు ఇటు తిరుగాడుతూ ఉంటుంది। వివేక శక్తి కూడా పూర్తిగా నశిస్తుంది। చైతన్యం తొలగిపోయిన తర్వాత శరీరానికి ఏ స్థితి కలుగుతుందో సరిగ్గా అదే స్థితి బుద్ధి నశించిన మానవునికి కలుగుతుంది। అతడు పతనమైపోతాడు। మరణించిన తర్వాత నానా విధములైన నీచ జన్మలు కానీ లేదా నరకములు కానీ పొందుతాడు। పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి। జై సద్గురుదేవ్, జై పరశురామ। സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 2 ശ്ലോകം 63। ക്രോധാദ്ദുതി സമ്മോഹ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതി ഭംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി। കോപം ഉണ്ടാവുന്നിടത്ത് ഭ്രമമോ ചിന്താശൂന്യതയോ മണ്ടത്തരമോ നിലനിൽക്കുന്നു। വിവേചനമില്ലായ്മയുടെ ആവിർഭാവത്തോടെ ശക്തമായ കാറ്റിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചമണയുന്നത് പോലെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുന്നു। അഥവാ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഒരു വ്യക്തി അജ്ഞതയുടെ ഇരുട്ടിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ബുദ്ധി ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ
ഭയപ്പെടുന്നു. ഹേ അർജുന, അന്ധനായി ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് അവിടെയും ഇവിടെയും അലിഞ്ഞു തിരിയേണ്ടി വരുന്നതുപോലെ അതേ രീതിയിൽ ബുദ്ധിയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുകയും അലിഞ്ഞു തിരിയാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. വിവേചന ശക്തി പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ബോധം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണോ അതേ അവസ്ഥ ബുദ്ധി നശിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനും സംഭവിക്കുന്നു. അവൻ അധപ്പതിക്കുകയും മരണശേഷം പലതരം താഴ്ന്ന യോനികളിൽ ജന്മമെടുക്കുകയോ നരകത്തിലേക്ക് വീഴുകയോ ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 2 श्लोक 63. आणि जिथे क्रोध आणि राग निर्माण होतो तिथेच भ्रम किंवा अविचारीपणा आणि मूर्खता देखील निर्माण होते. जेव्हा ज्ञानाचा अभाव निर्माण होतो तेव्हा स्मृती नष्ट होते. त्याचप्रमाणे ज्याप्रमाणे वाऱ्याच्या जोरदार झुळकीने दिव्याचा प्रकाश विझतो, त्याचप्रमाणे जेव्हा स्मृती नष्ट होते तेव्हा एखाद्या जीवाची स्थिती रात्रीमुळे सूर्यास्ताच्या वेळी सूर्यप्रकाशासारखी होते. मग जेव्हा सर्व काही अज्ञानाच्या अंधाराने झाकले जाते तेव्हा बुद्धी आतून घाबरते. हे अर्जुना, ज्याप्रमाणे जन्मतः आंधळ्या व्यक्तीला इकडे तिकडे भटकावे लागते, त्याचप्रमाणे बुद्धी देखील गोंधळून जाते आणि भटकू लागते. विवेकाची शक्ती पूर्णपणे नष्ट होते. चेतना निघून गेल्यावर शरीराची जी स्थिती असते तीच स्थिती बुद्धी नष्ट झाल्यावर माणसाला येते आणि तो पतन पावतो आणि मृत्यूनंतर तो विविध प्रकारच्या नीच जन्मात किंवा नरकात पडतो. जय गुरुदेव. क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. जतऽ तामस आबि गेल ओतऽ सम्मोह, अविचार आ मूर्खता के भाव रहिते अछि. अविवेक भेला सँ स्मृति तहिना नष्ट भऽ जाइत अछि जेना बिहाड़ि सँ दीपक ज्योति मिझा जाइत अछि. स्मृति नाश सँ प्राणी एहन दशा में पहुँच जाइत अछि जेना सूर्यास्त भेला पर रात्रि के कारण सूर्यक तेज हेरा जाइत अछि. आ जखन अज्ञानक अन्हार सब दिस व्याप्त भऽ जाइत अछि तब बुद्धि हड़बड़ा जाइत अछि, अस्थिर भऽ जाइत अछि. हे अर्जुन, जेना जन्म सँ आन्हर प्राणी एम्हर ओम्हर टकराइत भटकैत रहैत अछि, ठीक तहिना बुद्धि सेहो भ्रमित भऽ भटकऽ लागैत अछि. विवेक शक्ति पूर्ण रूप सँ नष्ट भऽ जाइत अछि. चेतना के शरीर सँ निकलला पर जे दशा शरीर के भऽ जाइत अछि तेहने दशा बुद्धिक नाश भेला पर मनुष्य के होइत अछि. ओकर पतन निश्चित अछि. मृत्यु भेला पर ओ नाना प्रकार के नीच योनि में जन्म लैत अछि वा नरक चल जाइत अछि. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.